Welcome back. In today's video, we will discuss about a web app, a data table web app with date filters, with date data filters. You can see आप इसको date के जरिए अपना data filter कर सकते हैं. Date, data, start date, end date. You can have two options, the start date and the ending date. So आपके पास यहाँ पर ये देखिए एक डाटा टेबल है. You have a data table. In that data table you have a lot of data with different dates. You can see है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के dates का यहाँ पर मल्टीपल डाटा है. अब ये देखिए हमने यहाँ पर डेटा फिल्टर डेट के जरिए करना है. तो हम देख लेते हैं सबसे पहले डाटा के अंदर डेट कहाँ से कहाँ तक है. 10 है, 11 है, 12 है, 12th है, 13, 14 and 9th. So now we see we have the dates from 9th April to 14 April. So अब मुझे यहाँ पर अप्रैल एंड देन मेरे पास 2024 है और 9th अप्रैल से. अब मेरे पास 9th अप्रैल से जो 9th था वो यहां से चला गया. The 9th is hide. You will see the total 9 entries and the remaining 8 entries are showing because we are start filtering data from 9th. And now I want to check the data till 13th. I want to check the data till 13th. So you can see here the data is filtered between the dates. You can see अब डाटा जो हमारे पास है वो इन डेट्स के दरमियान फिल्टर होकर आ चुका है. और साथ ही साथ आपने एक चीज गौर की होगी. अब यहां पर आपने क्या चीज गौर करनी है. यहाँ पे परचेज सम और यहाँ पे कंजप्शन सम. यू विल सी द परचेज सम एंड द कंजप्शन सम. सो व्हाट इज दिस. अगर हम यहाँ पर जो डेट है उसे हम 12th कर दें तो you will see the data is changed here. And if we go to 14 you will see the data is changed here. Why it's changed here? Okay, so now you can see why it's changed here because the data is filtered and the data is till 14th. You will see the consumption is 100 amount, the consumption is 100 and the consumption is 100 and the consumption is 100. So okay, if you want to just see data between the dates, you can apply that filter. And if you want the data just purchase, you can just click on this button icon. You can see you can see now just purchase data. You have total 5 entries of purchase data. आपके पास टोटल 5 entries हैं purchase data की. अब 5 का जब हम सम करते हैं तो 500 बन गया. यहां पर आप देखें अगर आपको कंजप्शन चाहिए, आपको सिर्फ कंजप्शन का डाटा चाहिए, आप कंजप्शन के ऊपर क्लिक करें. यू हैव टोटल 4 entries for consumption and total will become the 400 because each allocated 100 items. Okay, तो यहां पर उसको हर किसी को 100 आइटम्स दी गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं. ओके, अब यहां पर ये देखिए यू विल सी इफ यू वांट टू सी द डाटा ऑफ बोथ द परचेज एंड द कंजप्शन देन यू कैन चेक मार्क ऑन बोथ and now you can see the data of both purchase and the consumption. And here you will see the search type. What is the logic behind the search type? So it will just search data for type. It will just search data for type. So if I am writing 1, you will see the 1 Ramiz 1 data comes here. And if we enter 100, the data is not going to be filtered because in our type there is no 100 values. Okay, so यहाँ पर ये जो सर्च है ये इस वाले टाइप के साथ काम कर रहा है और किसी के अंदर भी ये सर्च डाटा नहीं करके फिल्टर नहीं करेगा. ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्च आपको दिख गया है. ये सर्च अब आपको यहाँ पर सब डाटा ही शो करवा देगा. जिस तरह से मैं 10th लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ. अभी यहाँ पर मेरे पास है नहीं, सो मैं अगर अप्रैल लिख दूं, अप्रैल भी नहीं मैं लिख सकता, मैं डेट पूरी लिख देता हूं. तो ये जो डाटा है ये तमाम के अंदर से डाटा फिल्टर करेगा. ये सिर्फ टाइप के अंदर से डाटा फिल्टर करेगा, ये तमाम के अंदर से. चलिए, अगर सर मैंने ये इसको देख लिया, अब हम इसके लॉजिक को समझते हैं कि ये सम वगैरह किस तरह से हो रहा है. अब आपके पास जरूरी नहीं है कि परचेज और कंजप्शन हो.
लेकिन जो भी आपके पास दो वैल्यूज हो, परचेज कंजप्शन के अलावा कुछ भी हो, पेड हो, पेंडिंग हो, अप्रूव्ड हो, डिक्लाइंड हो, देन आपने यहां पर चेंज करना है अप्रूव्ड एंड यहां पर आपने चेंज करना है डिक्लाइंड। अब ये याद रहे, ये कॉलम नंबर 4 से डाटा लिया जा रहा है। ये कॉलम नंबर, इसको हम क्या देते हैं सर 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। It will take the data from the 4th column to check the purchase and the consumption status. Okay, so you will change your data like you have the approved or pending, you can change from here. Okay, so अब ये भी आपने देख लिया। देन उसके बाद हम चाहते हैं कि सर हमारे पास इतना डाटा नहीं है, हमारे पास और डाटा भी है। टाइप 1 के आगे और भी है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। ओके, so if you want to add more rows in your data table, you just need to come here and just copy this and just enter and place this, and here you enter a comma and make it the type 2. So now you have the data from here also. Okay, so now we are going to refresh our web app. Because we are in developer mode, you will see the data from the type 2 also. You can see why this is comes here, because we add this here. Okay, so refresh this and again refresh this, so you can add multiple rows there. So here we add a button of copy. It will copy all the data entries. Here we have a CSV, the Excel file download option. You can download this data table in your Excel file. When you click on this, the Excel file will be downloaded. And also the Excel, again the PDF. When you click on the PDF, a PDF will be downloaded. You can see a PDF will be downloaded. And when you click on the print, a print will be taken like this. Okay, so if you want to remove the Excel or CSV file, you can just remove the Excel and CSV here. Okay, आप यहाँ पर इस CSV को और Excel को डिलीट कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप यहाँ से खत्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे, देन आप इसको सेव करेंगे और अपनी वेब ऐप के ऊपर जाकर रिफ्रेश करेंगे, देन Excel और CSV की जो फाइल है, जो बटन्स हैं, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वो यहाँ से खत्म शुद्ध हो जाएंगे। नाउ फॉर दिस सेटअप, अगेन आपके पास जो लिंक होगा, आप कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, मेक अ कॉपी के ऊपर आपने क्लिक करना है, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन मेक अ कॉपी, यू विल सी दिस टाइप ऑफ गूगल शीट इन योर एंड। And when you see this type of Google Sheet in the end, this is you just click on the extensions and the click on the app script. जब आपके पास इस तरह की Google Sheet नजर आने लग जाए, आपने extensions के ऊपर क्लिक करना है, app script के ऊपर क्लिक कर देना है। The code is pre-applied here. कोड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कोड ऑलरेडी मौजूद है। अब आपने यहाँ पर कोड तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो गया। अब आपने करना क्या, आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करके वेब ऐप, अगर आपके पास ये ब्लैंक शीट आता है वेब ऐप, देन आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। इट विल आस्क योर परमिशंस, यू विल प्रोवाइड इट, एंड आफ्टर दैट यू विल सी दिस काइंड ऑफ URL. दिस URL इज हेल्पफुल टू एक्सेस योर गूगल शीट डेटाबेस ऑन ए वेब ऐप। ये लिंक आपको मदद करेगा आपकी गूगल शीट डेटाबेस को हेल्प करने, देखने में, इस तरह से देखने में। ठीक है, सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है, करना चाहिए और करिएगा। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।